गुड आफ्टरनून CKYR 1067 ਰੈਡ FM ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜਸ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਫਰਲ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੇ ਆਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੇ ਆਫ ਹੈ? ਕਈ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਇਰ ਮੇਘਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਿਮ ਲਾਅ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਅ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿੰਸਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਅ ਫਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਘਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਮੇਘਾ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। गुड आफ्टरनून गुरप्रीत जी, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। तो मेघा, ये मैं बात कर रही थी कि वैसे तो अलग अलग लेयर्स हैं जहां पर हमारी लाइफ जो है वो मुतासिर हो रही है इसकी वजह से, और वायरस के दौरान अगर घर पर रहना है, चाहे वो बच्चों की टेक केयर के लिए है, चाहे हम काम पर जाना चाहते हैं लेकिन काम है नहीं, काम से बोल दिया गया है हमारे पास काम नहीं आपको देने के लिए, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? और लास्ट टाइम मुझे अच्छे से याद है, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया था सर्ब बेनिफिट्स को, CERB बेनिफिट को। तो थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन आगे लेकर जाएंगे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो उस दौरान आपके हक क्या हैं, आपके राइट्स, अधिकार क्या हैं, उनके बारे में बात की जा सके। हाँ जी गुरप्रीत जी, तो अभी इस टाइम पर बहुत सारे लोगों का ले ऑफ हो गया है
और उनके एम्प्लॉयर्स के उनको नोटिस मिलता है जिस पे लिखा होता है कि आपका ले ऑफ हो गया है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि ले ऑफ परमानेंट हो गया है कि टेम्पररी ले ऑफ है। तो अगर किसी का ले ऑफ हुआ है तो मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि वो अपने एम्प्लॉयर से क्लैरिफाई करें सबसे पहले तो कि ये ले ऑफ परमानेंट है कि टेम्पररी है। अगर टेम्पररी ले ऑफ है तो उनको अपने एम्प्लॉयर से चेक करना चाहिए कि जिस टाइम पे उनका ले ऑफ होगा, टेम्पररी ले ऑफ जिस टाइम पे कंटिन्यू होगा, उस टाइम पे एम्प्लॉयर उनको पे करेंगे, जो कि वो एम्प्लॉयर जो है CEWS जिसको कहते हैं कनाडा इमरजेंसी वेज सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे, या एम्प्लॉय को खुद ही CERB बेनिफिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम ना हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे मेघा आज के प्रोग्राम में, क्योंकि कई बार चीजों को पकड़ में लाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले ये बताएं कि ले ऑफ का मतलब क्या है? ओके, बेसिकली अगर आपके एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है इस टाइम पर, जैसे कि अभी ऑर्डर आया था जिसके अकॉर्डिंग नॉन एसेंशियल सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, तो उस कारण से एम्प्लॉयर्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज को काम पे नहीं रख पा रहे। तो एम्प्लॉयर चाहते भी हैं तो भी एम्प्लॉयज को काम पे नहीं बुला सकते। तो उस कारण से लोगों को एम्प्लॉयर्स ने कहा है कि आपकी इस टाइम पे ले ऑफ हो गया है। तो उनका ले ऑफ मतलब होता है कि आपको इस टाइम पे काम नहीं है आपके लिए। तो अगर ले ऑफ आपका हुआ है तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर से कंफर्म करें कि क्या जब कोविड-19 की सिचुएशन बेटर हो जाएगी आपको काम पे वापस बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो अगर काम पर नहीं बुला रहे तो उसको टर्मिनेशन कहेंगे। ओके, तो ये तो कई कंपनीज ने ये मेंशन किया है, अगर रिटन में दिया गया है कि ये टेम्पररी ले ऑफ है, तो टेम्पररी ले ऑफ मींस कि आपको बुलाया जाएगा काम पर वापस? गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। अगर एम्प्लॉयर ने आपको कहा है कि टेम्पररी आपको ले ऑफ मिला है तो आप अपने एम्प्लॉयर से कंटिन्यू करें चेक करने के लिए कि आपको कब वापस बुलाया जाएगा। तो और लेकिन अगर उसके बाद आपको नहीं वापस बुलाया जाता तो उसको परमानेंट ले ऑफ कहेंगे, परमानेंट ले ऑफ या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अच्छा, फिर परमानेंट ले ऑफ तो फिर टर्मिनेशन ही बन गया। हाँ जी। ओके, आप क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लॉयर हैं, नजर रखती होंगी हालात पर क्या क्या चल रहा है, तो कोविड-19 के दौरान अब करंट सिचुएशन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत बढ़ गया है। हाँ जी, इस टाइम पर अबाउट 7.5 मिलियन कैनेडियंस को ने अप्लाई किया है CERB बेनिफिट्स के लिए, यानी कि ये लोग हैं जिनको टेम्पररी ले ऑफ मिला है। और जो हमारे कनाडा की पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, जो एज ग्रुप बिलोंग करते हैं 15 to 64 के बीच में, वो है 24.5 मिलियन। यानी कि इस टाइम पर 1 in 3 वर्किंग कैनेडियंस हैव बीन लेड ऑफ। ओके, और अब ले ऑफ को ही आगे थोड़ा बढ़ाएं। एम्प्लॉयर ने मुंह जुबानी बोल दिया कि काम नहीं है, या फिर रिटन नोटिस देना जरूरी रहा है? ये भी जिनको ले ऑफ के लिए बोल दिया उनको क्लियर करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन। हाँ जी, आपको एम्प्लॉयर को अगर उनको टेम्पररी आपको ले ऑफ दिया है तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर को कि एज सुन एज पॉसिबल वो आपको रिटन में नोटिस दें और उस पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये ले ऑफ क्यों दिया गया है, किस रीजन से है, और एक्सपेक्टेड डेट रिटर्न की क्या है। और उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि इस टाइम पर, जिस टाइम पे आपका ले ऑफ हो रहा है, उस टाइम पर पेमेंट कौन पे करेगा। क्या आपको एम्प्लॉयर खुद पे करेंगे, वो एम्प्लॉयर जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं CEWS बेनिफिट के लिए, उसके लिए एम्प्लॉयर, या फिर एम्प्लॉयज को खुद ही CERB बेनिफिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये भी एम्प्लॉयर को ही क्लियर करना पड़ेगा जी, बताना पड़ेगा। हाँ जी जी, और जिन्होंने सर्व अप्लाई किया है अभी तक, अब तो काफी टाइम हो गया है, लोग री अप्लाई भी कर रहे होंगे, ये चीज क्लियर कर दें कि ROE जो है वो तो चाहे वो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है तभी
इनके पास होनी चाहिए तब था, क्योंकि इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा था कि आरओई आप बाद में शो कर सकते हैं। तो आरओई के बारे में, रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसके बारे में भी क्लियर करें जब ले ऑफ दिया जाता है। आरओई जिसको कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब भी आपकी एम्प्लॉयमेंट में किसी रीजन से भी इंटरप्शन होता है, जैसे कि टेम्पररी ले ऑफ हो रहा है या कोई मेटर्निटी लीव पे जा रहा है, किसी भी रीजन से आपकी जॉब में इंटरप्शन होता है, तो आपके एम्प्लॉयर को आपको इश्यू करना पड़ता है आरओई, रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कुछ लोगों से मुझे सुनने में मिला है कि कुछ मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया है कि उनको सीईआरबी बेनिफिट में लेने में मुश्किल हो रही है क्योंकि उनको आरओई टाइम पे नहीं मिला। तो एम्प्लॉयर्स को यूजुअली जो है अपनी जो एम्प्लॉयमेंट के लास्ट डे के बाद में अगर टेम्पररी ले ऑफ किया है, उसके 2 हफ्ते के बीच में एम्प्लॉयर को आरओई इशू करना पड़ता है टू लेट द गवर्नमेंट नो कि इस बंदे का टेम्पररी ले ऑफ हो गया है या किसी और रीजन से उनको उनकी जॉब में इंटरप्शन हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि हमें भी फिर अगर आरओई मिलता है तभी तो हम बेनिफिट्स के लिए अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं ना। हाँ जी, जो वर्कफोर्स है। तो जो ले ऑफ किया जाता है जब, तो क्या हेल्थ बेनिफिट्स जो कंपनी के साथ चल रहे थे वो कंटिन्यू रहते हैं, उनका फायदा लिया जा सकता है कि नहीं? हाँ जी, मोस्टली जो है एम्प्लॉयर्स जो है वो टेम्पररी ले ऑफ के टाइम पर जो आपकी इंश्योरेंस होती है, हेल्थ बेनिफिट जनरली कंटिन्यू होते हैं। लेकिन ये भी आपको एक चीज है अपने एम्प्लॉयर से कंफर्म करना चाहिए। अगर आपके हेल्थ बेनिफिट्स कंटिन्यू नहीं हो रहे तो दिस कुड बी अ रेड फ्लैग फॉर यू, क्योंकि हो सकता है कि ये एम्प्लॉयर आपको, हो सकता है अभी तो बोल रहे टेम्पररी ले ऑफ है, और ये भी हो सकता है कि आपको फ्यूचर में वो कॉल बैक नहीं करे। तो ये चीज भी कंफर्म करनी जरूरी है कि आपके बेनिफिट कंटिन्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ज्यादातर लोग जिनके टेम्पररी ले ऑफ इस टाइम पे हो रहे हैं, उनके बेनिफिट्स जो हैं, हेल्थ बेनिफिट्स कंटिन्यू कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स इस टाइम पर। अच्छा, कर रहे हैं। एक तो ये रेड फ्लैग की बात की, और क्या रेड फ्लैग हो सकता है कि अभी तो कहा है कि ये ले ऑफ है आपके लिए, पर बाद में काम पे बुलाएं ना बुलाएं? ये आई थिंक ये विद टाइम ही पता चलेगा कि कितने लोगों को वापस बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे, अगर इस टाइम पे 1 in 3 कैनेडियंस हैव बीन लेड ऑफ, तो एम्प्लॉयर्स मोस्ट लाइकली इकोनॉमी को रीस्टार्ट होने में टाइम लगेगा। तो अगर जब कोविड-19 की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, उसी टाइम पे ही गेज कर सकते हैं कि कितने लोगों को एक्चुअली वापस बुलाएंगे एम्प्लॉयर्स और नहीं बुलाएंगे। और जिनको नहीं बुलाएंगे वापस, उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट लॉयर से राइट अवे बात करें। ओके, मेघा प्लीज आप लाइन पर बने रहिएगा, बातचीत जारी रखेंगे। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ 4032861067 ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਵੇ ਲੇ ਆਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ परिभाषा भी समझनी है। टर्मिनेशन होती क्या है, और टेम्पररी ले ऑफ इन दिनों चल रही है, परमानेंट ले ऑफ या फिर टर्मिनेशन, इसका क्या मतलब है? बातचीत जारी रहेगी। रेड एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रोशनी, और आज मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट लॉयर मेघा शर्मा हैं। ये शिम लॉ के साथ लॉयर हैं। और मेघा, आपकी प्रैक्टिस के जरिए आपको पता चलता रहता है कि काम से जब फारिग कर दिया जाता है, छुट्टी आपकी हो जाती है, तो उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आप जरूर अवगत करवाती रहती हैं, अवेयर करवाती रहती हैं लोगों को, जो कि अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका आपके काम के लिए। सो मेघा, कंटिन्यूइंग, टर्मिनेशन का क्या मतलब है? ओके, तो टर्मिनेशन का मतलब होता है, जिसको फायर्ड बोल देते हैं, लोग कहते हैं कि हमें फायर्ड कर दिया है, डिसमिसल बोलते हैं, या कहते हैं परमानेंट ले ऑफ हो गया है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इक्विवेलेंट ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जॉब पे दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, आपको you're done with this company, तो आपको ये इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। और अगर किसी का टर्मिनेशन होता है तो उसके लिए रीजन हो, आपको ये पता, हम लोग एम्प्लॉयमेंट लॉयर्स देखते हैं कि रीजन क्या है, अगर ये विद कॉज है कि विदाउट कॉज है टर्मिनेशन। तो विद कॉज, ये दोनों लीगल टर्म्स हैं। विद कॉज का मतलब होता है कि क्या एम्प्लॉय ने कुछ अपने काम पर कुछ गलत किया है, जैसे फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय ने किसी को पंच कर दिया, या किसी अपने काम पे कोई थ्रेट किया है एम्प्लॉय ने, तो उसको विद कॉज टर्मिनेशन कहते हैं।
और ये एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ता है कि हमने किसी एम्प्लॉय को राइट रीजन से निकाला है। बट जो इस टाइम पे सिचुएशन है कोविड-19 की, तो लोग मोस्टली जो अभी जिनकी जॉब हट गई है या फ्यूचर में हटेगी, वो लोग सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है विदाउट कॉज बेसिस पे आएंगे। विदाउट कॉज बेसिस का मतलब है कि एम्प्लॉय में इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एम्प्लॉयर को उनको जॉब से हटाना पड़ गया है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, ठीक है। और ये चीज जो है वो अलाउड है क्या? ओके, तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जनरली एनी काइंड ऑफ टर्मिनेशन, ले ऑफ, इवन ले ऑफ भी जनरली जो होते हैं कनाडा के अंदर अलाउड नहीं है। आपके एम्प्लॉयर्स आपको ऐसे ही ले ऑफ नहीं कर सकते। बट ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा यूनिक सिचुएशन है, क्योंकि इस टाइम पर एम्प्लॉयर्स चाहकर भी आपको काम पे नहीं रख सकते बिकॉज काफी सारी जॉब्स को और काफी सारे प्लेसेस को अपना क्लोज करना पड़ गया है। तो वो एक यूनिक सिचुएशन है। तो फ्यूचर के लिए मैं सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि ले ऑफ जनरली अलाउड नहीं होते, और अगर ले ऑफ कंटिन्यू हो जाते हैं काफी ज्यादा, अगर आपके ले ऑफ अगर आपका 4 महीने से ज्यादा कंटिन्यू होगा तो उसको भी टर्मिनेशन ही कहा जाएगा। और टर्मिनेशन के टाइम मैं वही पूछने वाली थी। तो अगर 4 महीने से ज्यादा आपका ले ऑफ कंटिन्यू होगा तो उसको भी टर्मिनेशन माना जाएगा। और उस केस के अंदर जो है आपके एम्प्लॉयर को आपको प्रॉपर सेवरेंस देना चाहिए। सेवरेंस जो होता है वो आपको जो है 1 महीने का हो सकता है नोटिस पीरियड, या अप टू 2 years आपको जो है सैलरी जो है आपको आपके एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ सेवरेंस आफ्टर योर टर्मिनेशन। अप टू 2 years? इट्स अप टू 2 years, यस। और ये कैसे निर्धारित किया जाता है कि अगर किसी को टर्मिनेशन दे दिया गया, परमानेंट ले ऑफ है वो, तो कितनी देर तक सेवरेंस मिलेगा? ओके, तो सबसे पहले तो जो सेवरेंस किसी को कितना मिलेगा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग उनको सेवरेंस मिलेगा। तो कई लोग सोचते हैं कि शायद हमें 2 हफ्ते मिलेगा या 3 हफ्ते मिलेगा। वो एक बेसिक पॉइंट है। जो आपकी जो एक्चुअल सेवरेंस होती है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि आपका ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था, अगर आपने उसके बाद में कोई और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, तो उसको इवैल्यूएट किया जाता है। प्लस जो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपकी एज कितनी है जिस टाइम पे आपका टर्मिनेशन हुआ है, आपने कितने साल एम्प्लॉयर के साथ काम किया है, आपके कितने चांसेस है कि आप फ्यूचर में कोई और जॉब सिक्योर कर सकेंगी, और आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या थी इस जॉब पे। तो उन बेसिस पर जो है आपकी सेवरेंस जो होती है डिटरमिन होती है कि कितना आपको एम्प्लॉयर को पैसे देने चाहिए आपको। ओके। और अगर हमारे एम्प्लॉयर ने ये कह दिया, लिख कर दिया है कि आपके ये टेम्पररी ले ऑफ है, जैसे कि कोविड-19 की वजह से चल रहा है, कंपनी के पास काम नहीं है या पैसे बन नहीं रहे कि हम अपने एम्प्लॉयज को कैसे देंगे, और कुछ तो ऐसे हैं जैसे सैलून्स या कुछ और ऐसे नॉन एसेंशियल सर्विसेज जिन्हें बंद ही बिल्कुल कर दिया गया, तो उन्हें तो मतलब कैसे एम्प्लॉयर ने ये डिसीजन लिया होगा कि टेम्पररी ले ऑफ देंगे या यहाँ पे टर्मिनेशन ही दे दे क्योंकि काम बिल्कुल बंद है, ठप है? ये एम्प्लॉयर्स जो है आई थिंक अपने आप बेसिस पे वो एम्प्लॉयर्स के अपने बिजनेस डिसीजन है कि वो उस पर डिसाइड करते हैं कि किसको उन्होंने टेम्पररी देना है, किसको परमानेंट देना है। और जो चीज मैं लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि आपके एक काम पे है 5 लोग काम करते हैं और एक बंदा है जो डिसेबल्ड है, फॉर सम रीजन दे हैव अ डिसेबिलिटी, उन्हीं को ही अगर वो लोग ले ऑफ कर रहे हैं या उन्हीं को ही टर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। There's something wrong with it. तो वो उस केसेस के अंदर उनको that's again a big red flag for them कि अगर आपको अगर कुछ लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो then in that case you have to go regardless of any reasons। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है, contact an employment lawyer ताकि वो आपको बता सके कि आपकी कितनी सेवरेंस आपकी बनती है। ओके। जो टेम्पररी ले ऑफ है
उस दौरान आपको उस लेटर में ये लिखकर नहीं दिया कि कब तक आपको वापस बुलाया जाएगा, तो हम इसका क्या मतलब समझें कि कब बुलाएंगे? 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या कोविड-19 जब खत्म हो जाएगा, या अगले साल? कैसे पता चलेगा? हाँ जी, तो अगर जैसे अभी सस्कैचुअन में रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं, बिजनेसेस ने स्टार्ट कर दिए काम, होपफुली अल्बर्टा विल फॉलो द सेम। तो जब बिजनेसेस स्टार्ट होंगे, आपको पता है कि शॉप स्टार्ट हो गई है, किसी की शॉप, आपको पता है कि शॉप पे बाकी लोग आ गए हैं और आपको नहीं बुलाया, तो आप अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपको मुझे कब बुलाएंगे। अगर 1-2 दिन की बात है, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयर आपको डेट नहीं बता रहे हैं या आपको कह रहे हैं हाँ जी भी अगले साल बुलाएंगे या 1 महीने बाद बुलाएंगे, तो आप उसको टर्मिनेशन ही देखें, सी इट एज अ टर्मिनेशन कि आपको वो नहीं बुलाने वाले, एंड यू शुड कॉन्टेक्ट द लॉयर राइट अवे, ताकि वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सेवरेंस यानी कि नोटिस पीरियड दिलवा सके आपको टर्मिनेशन का, या पेमेंट दिलवा सके आपको। ओके, सेवरेंस के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, पर फिलहाल एक और चीज हम क्लियर कर दें सुनने वालों के लिए कि ये जो टेम्पररी ले ऑफ का टाइम है, इस दौरान जिसको टेम्पररी ले ऑफ मिली हुई है, क्या वो किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर वो बेनिफिट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, या बेनिफिट के लिए, सर्व के लिए, CERB के लिए किया है अप्लाई, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कोई काम मिल जाए तो बढ़िया है, तो क्या किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो उस दौरान? ओके, अगर मैं सबको इंकरेज करूंगी कि आपको अगर आपने डिसीजन लिया था कि ज्यादातर लोग अपने एम्प्लॉयमेंट से खुश नहीं है, इट माइट हैपन इवन बिफोर ये कोविड-19 से पहले की सिचुएशन है, तो उसके कारण कोविड-19 के कारण आप अपनी लाइफ पर होल्ड ना लगाएं। Whatever you need to do for yourself and you know what is best for you, you should do it. तो अगर पता है कि कोई जॉब आ रही है, तो उसके लिए अगर आपको लगता है, आपको पर्सनली पता होता है कि आपके लिए क्या ठीक है, तो आपको वो करना चाहिए। जैसे इस टाइम पे कई लोगों को लगता है कि वो अमेजोन के लिए, जो अमेजोन इस टाइम पे जो है बहुत सारी जॉब्स निकाल रहे हैं, तो कई लोग अमेजोन पे स्विच कर रहे हैं, तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है कि उनके लिए अपने लिए ठीक है। अगर आपको अपने लिए ये लग रहा है कि ठीक है, तो गो विद दैट। तो कोविड-19 का इससे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस बात का। तो क्या फिर एज एन एम्प्लॉय हमारी जिम्मेदारी भी एम्प्लॉयर के लिए बनती है कि कहीं और जॉब हमने अप्लाई कर ली है, अब वापस काम पर हमने आपकी कंपनी के साथ नहीं आना, तो इन्फॉर्म करना जरूरी है क्या? हाँ जी, अगर आपने ड्यूरिंग दिस टेम्पररी ले ऑफ या कोविड के टाइम पे आपको कोई नई जॉब मिल जाती है किसी को, तो उनको अपने एम्प्लॉयर को, जैसे आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ है, अगर यूजली 2 वीक्स लिखा होता है या 4 वीक्स होता है, नोटिस आपको अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हाँ मैंने जॉब स्विच कर ली है। ओके, एक क्वेश्चन आया आपके लिए टेक्स्ट मैसेज में, उन्होंने पूछा है कि इफ समवन सेल्फ एम्प्लॉयड और 2018 के लिए टैक्स नहीं किए थे उन्होंने, तो क्या वो CERB के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने टैक्सेस राइट अवे भरने चाहिए, बिकॉज उसका एक क्राइटेरिया है कि उनको चेक करने का गवर्नमेंट का कि आपकी कितने आपने इनकम ली है, तो उनको अपने टैक्सेस अपने फाइल करें, तो उसके बाद में वो अपने CERB बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, इफ दे मीट द क्राइटेरिया और नॉट। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन। मेघा, आप प्लीज लाइन पर बने रहिए। This is a Red FM COVID-19 update. सो कोविड-19 अपडेट लेके हाजिर हाँ जी, मैं अमनजोत सिंह पन्नू। और सिटी ऑफ कैलगरी ने कुछ अहम ऐलान ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਕਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਂਪੀਡ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੈਂਪੀਡ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਈਵੈਂਟਸ ਪਲੈਨਡ ਸੀਗੀਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 31 ਆਫ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਰੋਡ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ
ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ $1,200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਟਿਲ ਨਾਓ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ मेघा शर्मा नाल जारी रखांगे। सो मेघा जी, एक सवाल आपके लिए आया है और क्वेश्चन ये है कि पूनम को टेम्पररी ले ऑफ दे दिया गया था और उन्होंने ईआई के लिए फिर अप्लाई कर दिया था और हर हफ्ते वो अपनी रिपोर्ट्स फिल कर रही हैं। उनका पूछना ये है कि उन्हें क्या सर्व के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है? जिन लोगों ने ईआई के लिए अप्लाई किया था उनकी ऑटोमेटिकली फाइल जो थी सीईआरबी में ट्रांसफर हो गई थी, तो होपफुली जो सीईआरबी में फाइल ट्रांसफर होगी तो उनको अप्लाई दोबारा नहीं करना पड़ेगा, उनको पेमेंट्स कंटिन्यू होंगी। तो क्योंकि कुछ लोगों को अपने काम को लेकर चिंता है, कईयों को टेम्पररी ले ऑफ मिल चुकी है, वो घर पर हैं, या फिर कईयों ने खुद भी मांगी हो सकती है क्योंकि बच्चों का ख्याल रखना है ना, तो कंपनी के साथ बात की होगी तो खुद भी मांगी होगी ना लोगों ने टेम्पररी ले ऑफ। मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है, जिन लोगों से मैंने बात की है, लोगों ने टेम्पररी ले ऑफ खुद डिमांड नहीं की है, उनको एम्प्लॉयर्स ने किया है। या कुछ अगर एम्प्लॉयर्स पूछते हैं कि अगर 10 लोगों को उन्होंने ले ऑफ करना है टेम्पररी ले ऑफ और उनको कुछ लोग वॉलंटियर करते हैं तो उस हिसाब से कई बार एम्प्लॉयर्स ले ऑफ कर देते हैं। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि खुद कोई भी, और मैं किसी को डिस्करेज भी करूंगी कि आप खुद ना भी बोलें कि हाँ जी हमें टेम्पररी ले ऑफ दे दीजिए। जी, अभी सेवरेंस का मतलब आप समझाएं क्या है? हाँ जी, तो सेवरेंस का मतलब होता है ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपने एम्प्लॉयर्स के साथ में एग्री किया है, जो आपके फॉर्मर एम्प्लॉयर जिसने आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दी है उनके साथ आप एग्री कर रहे हैं कि वो आपको सेवरेंस पे कर रहे हैं। जो पेमेंट है जो कि महीना हो सकती है या 2 साल हो सकती है आपकी सैलरी की, वो पेमेंट आपको एम्प्लॉयर पे करेंगे आफ्टर टर्मिनेशन, और आप प्रॉमिस करते हैं कि आप उनको अगेंस्ट केस नहीं करेंगे। और जो ज्यादातर हम लोग देखते हैं अपने प्रोफेशन में कि एम्प्लॉयर जो है ज्यादातर अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं 2 हफ्ते की सेवरेंस, कि हम आपको 2 हफ्ते की सैलरी पे कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ योर रेगुलर सैलरी, और आप ये पेपर साइन कर दीजिए सेवरेंस के। तो उसको हम जो है सेवरेंस पैकेज बोलते हैं, टर्मिनेशन पैकेज भी बोलते हैं या कंपनसेशन पैकेज बोलते हैं। तो उसको इन कंटेक्स्ट सेवरेंस पैकेज के कनेक्शन में बोलते हैं। और अगर टर्मिनेशन हो जाती है यानी परमानेंट ले ऑफ है तो क्या किया जाना चाहिए? ये तो है कि एम्प्लॉयर ने आपको जो ऑफर किया, लेकिन एम्प्लॉय को कैसे डिसीजन लेना चाहिए? जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर जो है आपकी सेवरेंस कितनी मिलनी चाहिए, आपको कितने मंथ की या कितने सालों की आपको पे जो है आपको मिलनी चाहिए आफ्टर टर्मिनेशन, ये सब जो है काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर नहीं होता। आपका ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, आपकी एज कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी क्या पोजीशन है, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे, और करंट जो है इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे जो केस लॉ जो है रिसेंट केसेस में क्या डिसाइड हुआ है, उसके बेसिस पे आपको जो है सेवरेंस डिसाइड होता है। और मोस्टली जो है लोग खुद नहीं बता सकते कि उनको कितनी सेवरेंस मिलनी चाहिए, उनको एक लॉयर से ही बात करनी चाहिए ताकि वो आपको बता सके कि उनको कितनी प्रॉपर सेवरेंस मिलनी चाहिए बेस्ड ऑन देयर एज, एजुकेशन, ईयर्स ऑफ सर्विस। इन्हीं बेसिस पे ये डिसाइड करा जा सकता है कि उनको कितनी सेवरेंस मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने टर्मिनेशन के बाद एकदम से फैसला ले लिया कि जो एम्प्लॉयर ने कहा 2 हफ्ते के लिए सेवरेंस पे करेंगे, उस पर साइन कर दिया, तो उसके बाद फिर अगर लॉयर के पास जाएंगे वो तो अंडू नहीं किया जा सकता ना? हाँ जी, बेसिकली बहुत लोगों ने ऐसे किया है जो उनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने एम्प्लॉयर से बात, किसी एम्प्लॉयमेंट लॉयर से बात किए बिना ही पहले पेपर साइन कर दिए। ऐसे मत करिए, क्योंकि अगर आप पेपर साइन कर देते तो हम उसको अंडू नहीं करवा सकते हैं। और आपको किसी को भी अगर कोई सेवरेंस पैकेज मिलता है या कोई टर्मिनेशन पैकेज करता है तो एक और बहुत जरूरी रीजन है कि आप एम्प्लॉयमेंट लॉयर से कांटेक्ट करें, क्योंकि कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं एम्प्लॉयमेंट इन पैकेजेस के अंदर
जो आपके साथ आपने, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नॉट यूज टू लुकिंग एट लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो उनके लिए शायद पहली बार उन्होंने कुछ सेवरेंस पैकेज देखा होता है, तो उसमें कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं कि कल को आपको फ्यूचर में जॉब ढूंढने में भी हिंड्रेंस हो सकती है। कई बार एम्प्लॉयर्स ऐसे क्लॉजेस डाल देते हैं कि आप ऐसी इस इंडस्ट्री में जॉब नहीं ढूंढ सकते, आप 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जॉब नहीं ढूंढ सकते, तो आपकी फ्यूचर जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। तो इसलिए अगर आप सेवरेंस मिल रहा है या नहीं भी मिला, आपके टर्मिनेशन के बाद में राइट अवे एम्प्लॉयमेंट लॉयर से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, सो बातचीत हम जारी रखेंगे। मेघा, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਲਾਇਰ ਮੇਘਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਬਣੇ, इस वास्ते गलबात ਜਿਹੜੀ ਉਹ चल रही है और चर्चा ਜਿਹੜੀ काफी इम्पोर्टेंट। मेघा जी, अभी ये जानना चाहेंगे कि कईयों को ऐसा बोल दिया गया है कि आप ये पोजीशन पे थे, अब आप छोटी वाली पोजीशन ले लें, ये एक तरह से डिमोशन है, तो ये डिमोशन पता नहीं टेम्पररी है या उनको कवर्ड रखने के लिए कि काम से निकाल भी नहीं रहे हैं और उनके स्किल्स का फायदा भी लिया जा रहा है, लेकिन वो जो पहले जितनी सैलरी पर थे उससे कम वाली सैलरी पर रखा गया है, तो इसे थोड़ा सा समझाएं हमें। हाँ जी, अगर किसी का डिमोशन होता है, ये 3 टाइप्स से हो सकता है। अगर आपकी पोजीशन कम कर देते हैं, किसी को मैनेजर से, जैसे आपने कहा कि उसको सेल्स पर्सन बना दिया, तो उसको मैनेजर से राइट अवे उसकी सैलरी जो है 100,000 से 30,000 कर दी, या आपकी जो है आवर्स रिड्यूस कर दिए हैं, तो वो सारे जो होते हैं इनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। कोई भी टाइप का डिमोशन होता है, सैलरी में, आपकी पोजीशन में या आपकी पे में, उस सबको जो है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। ये भी जो है कई एम्प्लॉयर्स जो है इसको कोविड को एज एन एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं इस टाइम पर, और अपने आप ही यूनिलैटरली अपने एम्प्लॉयज की सैलरी या पोजीशन कम कर रहे हैं। ये भी लीगली अलाउड नहीं होता, और कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल के केसेस में भी आपको राइट अवे एम्प्लॉयमेंट लॉयर से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इस टाइम पे इसको एग्री कर देते हैं तो हमारे लिए फ्यूचर में हम आपके कल को आपको मुश्किल होगा अगर आपको कल को इसके ये क्लेम करना कि आपने आप इस डिसीजन से सहमत नहीं थे। तो आप मेक श्योर करें कि अगर किसी को ऐसे हुआ है कि डिमोशन हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट लॉयर से जरूर बात करें राइट अवे। जी, ये तो हमने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि रिड्यूस्ड आवर्स हो गए या फुल टाइम जॉब में लिमिटेड आवर्स मिल रहे हैं, अभी 40 आवर्स पर वीक नहीं मिल रहे, सिर्फ 25 ही मिल रहे हैं, तो उस हालात में लोगों को क्या करना चाहिए? अगर किसी को टेम्पररी बेसिस पे कम आवर्स मिल रहे हैं, तो ये भी अगेन में केस पर, ये हर जो भी एम्प्लॉयमेंट के जितने भी मैटर्स होते हैं केस पर केस बेसिस पे देखना चाहिए। तो अगर आप ही अगर 10 एम्प्लॉयज के बीच में एक ही बंदे के साथ में ऐसा हो रहा है कि उसी को ही 25 आवर्स, उसके 25 आवर्स के, लेकिन बाकी सबके सब ठीक है, तो वो रॉन्ग है, बिकॉज उस केस में उसी को ही सेग्रीगेट क्यों किया जा रहा है, तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ है। लेकिन अगर सभी के साथ में ऐसा हो रहा है कि सबके 40 आवर्स से 25 आवर्स हो गए हैं, और अगर एम्प्लॉय को भी लगता है कि हाँ भाई अभी हमारे एम्प्लॉयर का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो दैट इज रीजनेबल, तो एम्प्लॉय के लिए ये मैं सजेस्ट करूंगी कि वो राइट अवे अपने एम्प्लॉयर को कंफर्म करके दे रिटर्न में कि अभी बिकॉज ऑफ कोविड-19 ऑन टेम्पररी बेसिस आई एग्री टू दिस फॉर नेक्स्ट वट एवर मंथ, के जितनी भी देर के लिए है, बट आई एक्सपेक्ट कि आपका जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी दैट आई विल बी रिज्यूमिंग माय रेगुलर आवर्स और रेगुलर सैलरी। अच्छा, कुछ एम्प्लॉयर ऐसे भी ऑप्शन देते हैं कि अगर रिड्यूस्ड आवर्स हैं तो आप जैसे वर्क शेयर स्कीम है या ईआई जो शेयर्ड होती है वो वाली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा क्या होता है? हाँ जी, तो एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वर्क शेयरिंग अरेंजमेंट। इसकी एप्लीकेशन जो है जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस अकाउंट पे, सीआरए के बिजनेस अकाउंट पे। तो अगर आपके एम्प्लॉयज हैं जो एक जैसा काम कर रहे हैं, दो से ज्यादा, तो आप उनको जो है कुछ जैसे है कि एग्जांपल है 5 दिन के अंदर 2 दिन वो जो है एक एम्प्लॉय काम करे, अगले 2 दिन जो है दूसरा एम्प्लॉय काम करे,
तो उस तरीके से एम्प्लॉयर का जो बर्डन है वेजेस पे करने का वो थोड़ा डिवाइड हो जाता है। तो कुछ पैसे जो है एम्प्लॉयर पे करेगा, कुछ जो है वो एम्प्लॉय जो है वो CERB से कलेक्ट करेंगे। ओके। पर CERB के लिए तो उन्होंने 10 घंटे कहा है कि 10 घंटे या उससे कम अगर बन रहे हैं, पर अगर किसी के जैसे हमने 25 की बात की है फॉर एग्जांपल, जस्ट एन इंस्टेंस, तो फिर वो क्या कुछ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? अगर किसी की वेजेस जो है, अगर महीने में किसी की सैलरी जो है, इनकम है 4 हफ्ते के अंदर $1000 से कम है, तो ही वो CERB के लिए बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग फॉर इंस्टेंस 25 आवर्स काम कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबली सैलरी जो होगी $1000 से ज्यादा होगी, तो वो CERB बेनिफिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसी सिचुएशन में रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो कॉल मी और एनी एम्प्लॉयमेंट लॉयर, ताकि वो आपको बता सके कि आपके साथ में जो हो रहा है ठीक है कि नहीं है। और अगर आपको खुद भी लग रहा है कि हाँ इस टाइम पे बिजनेस बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, एम्प्लॉयर हमें नहीं पे कर सकते, इट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन केस बाय केस बेसिस, कि अगर रीजनेबल आपको लग रहा है कि हाँ एम्प्लॉयर के पास में भी इस टाइम पे बिजनेस नहीं है, तो आप टेम्परेरी बेसिस पे एग्री कर सकते हैं कि हाँ मैं 40 की जगह 25 आवर्स करने के लिए रेडी हूँ, बट मेक श्योर यू डॉक्यूमेंटेड, कि आप उसमें बोलें कि हाँ मैं इस टाइम पे टेम्परेरी बेसिस में रेडी हूँ टू टेक लेस आवर्स। जी, बहुत सारे और पक्ष हैं जिनके बारे में समझना है, अभी थोड़ा टाइम और है, प्लीज आप लाइन पर बने रहिए। रेड एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रोशनी और मैं हूं गुरप्रीत। मेरे साथ शिमला से लॉयर, एम्प्लॉयमेंट लॉयर मेघा शर्मा शामिल हुए हैं और कोविड-19 के दौरान एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो शायद हमें नहीं पता, उनके बारे में पता होना चाहिए, समझ होनी बहुत जरूरी है और मेघा यही करने की कोशिश कर रही हैं। तो मेघा, आपको इन दिनों जैसे फोन कॉल्स आते हैं या जैसे लोग कांटेक्ट करते हैं, कैसे सवाल ज्यादा आ रहे हैं आपके लिए? मुझे जो अपनी कम्युनिटी से फोन कॉल्स आ रहे हैं ज्यादातर तो EI के बारे में, CERB के बेनिफिट्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या है, और उसके साथ साथ में जो मुझे इंफॉर्मेशन जो लोगों ने बताई है जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है, कि जैसे एग्जांपल है, मुझे किसी ने भी फोन किया था, उनकी 25 साल की सर्विस थी और उन्होंने खाली 2 हफ्ते की सेवरेंस ली और पेपर साइन कर दिए, रिलीज कर दिए डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर के साथ में। उनकी कोई गलती भी नहीं थी इनकी, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, बट बिकॉज ऑफ इकोनॉमी उनके जो है एम्प्लॉयर ने उनको टर्मिनेट कर दिया था उनकी एम्प्लॉयमेंट। तो उस बात पे मैं सबको प्लीज ये रेकमेंड करूंगी कि कोई भी पेपर मत साइन करिए जब तक आप एम्प्लॉयमेंट लॉयर से बात नहीं करते, क्योंकि आप खुद जो है एम्प्लॉयर्स जो है वो एज्यूम करते हैं कि आपको लॉज नहीं पता, जो लोगों को नहीं पता होते, और या एम्प्लॉयर्स को खुद भी नहीं पता होता कि लॉ क्या है, कितनी सेवरेंस देनी चाहिए। तो ये मेरे को ज्यादातर कॉल्स आ रही हैं जिसके अंदर लोग बोल रहे हैं कि हमने तो पेपर साइन कर दी, अब क्या करें। तो ये प्लीज माइंड में बात रखिए कि आपको अगर कि सेवरेंस, अगर आपको टर्मिनेशन हो गया तो एम्प्लॉयर को सेवरेंस देना आपका एक अपना राइट है कि आपको एम्प्लॉयर जो है सेवरेंस दें। यू हैव टू डिमांड कि आप मेरे को प्रॉपर आप सेवरेंस दें। राइट और ये चीज से भी कुछ लोग डरते हैं कि अगर लॉयर के साथ बात की तो ऐसा ना हो कि कागजी कार्रवाई हमारी कंपनी तक पहुंचा दे, वो हमें तंग करें, जो मिल रहा है उससे भी हम जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लोगों का शक जो है वो दूर करें। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है, अगर इस टाइम पे आप उस कंपनी के साथ में अभी भी एम्प्लॉई हैं, तो जब भी लोग मेरे पास आते हैं उनके पास कुछ कंसर्न्स होते हैं, फॉर लेडीज लाइक वो गोइंग ऑन मैट लीव, उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो मैं खुद पर्सनली जो है इंश्योर करती हूँ कि उनका रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयर के साथ इंटैक्ट रहे। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को टर्मिनेशन हो जाता है और उसके बीच में जब हम उनसे नेगोशिएट कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयर्स उनको वापस काम पे बुला लेते हैं विद द सेम पोजीशन एंड द सेम बेनिफिट्स। तो ये चीजें जो होते हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉयर्स हम लोग चेक करते हैं कि रिलेशनशिप आपसे, सबसे पहले तो हम लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, तो उस पर डिपेंड करता है और उस हिसाब से ही हम आपके एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट करते हैं। ओके, जब एम्प्लॉयर के साथ बात करनी है एक एम्प्लॉई ने, अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं कि कईयों की जॉब है जो यूनियनाइज्ड है, यूनियन वाली जॉब है, कईयों की यूनियन कोई नहीं है, सो वहां पर अप्रोच और कम्युनिकेशन जो है दोनों में कैसा फर्क है?
ओके, तो जो अल्बर्टा में है, कुछ लोग जो है अबाउट 95,000 जो है के अल्बर्टन्स जो हैं वो खाली AUPE के अंदर आते हैं, AUPE विच इज अल्बर्टा यूनियन फॉर प्रोविंशियल एम्प्लॉइज। तो उनके जो होते हैं उनके प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है कि अगर उनकी जॉब हट जाती है तो उनकी सेवरेंस मिलेगी, उसमें प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जो ज्यादातर एम्प्लॉइज हैं अल्बर्टा के अंदर वो किसी भी यूनियन को बिलोंग नहीं करते, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ में और कोई स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते और कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते। और इसीलिए मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि किसी की भी जिसकी जॉब हट रही है, अगर परमानेंट उनका ले ऑफ हो गया है या टर्मिनेशन कह रहे हैं या फायर्ड कह रहे हैं, तो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट लॉयर से बात करें, क्योंकि ये एक फैक्टर नहीं है आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है या आपका स्टैचू क्या कह रहा है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स को देख के ही हम आपको बता सकते हैं कि आपको कितनी सेवरेंस मिलनी चाहिए, और जो कि 1 महीना हो सकती है, अप टू 2 years भी सेवरेंस हो सकती है। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि अभी क्योंकि इवन जो हमारा इमरजेंसी वेज सब्सिडी प्रोग्राम है एम्प्लॉयर के लिए अभी भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस दौरान काम भी करवाया एम्प्लॉय से, और ये कब तक क्लियर होगा कि उनको कितनी आएगी, गवर्नमेंट की ओर से क्या मिलेगा, तो ये अगर अनसर्टेनिटी है तो वो कैसे एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करनी चाहिए या एम्प्लॉय को कैसे अप्रोच करना चाहिए? तो अगर एम्प्लॉयर ने नोटिस दिया है और एम्प्लॉयर ने उसमें क्लैरिफाई नहीं किया कि इस टाइम पे पेमेंट करेगा, तो एम्प्लॉय को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयर से, मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि मेक श्योर ऑल कम्युनिकेशन इज पोलाइट, ओके, बी पोलाइट एंड जस्ट आस्क लाइक आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ये जो है ड्यूरिंग दिस टाइम टेम्परेरी ले ऑफ के टाइम पर आप हमें पे कर रहे हैं, आप या फिर हमको खुद CERB के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल ठीक है। ओके मेघा, सो बहुत अच्छी रही बातचीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। You're most welcome. Thank you. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਔਰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੇ ਆਫ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ